Summer go-to hairstyle बताने से पहले I'm going to show you how I like to wash my hair and blow dry it because they play a very important role in making my hairstyle look good. So I'll be using shampoo to wash my hair. For that I'll be using Buds and Berries Pistachio and Argan Oil shampoo. I'll be taking around 4 pumps of this on my palm, going to emulsify this and going to apply this all over my scalp, and I will start cleansing my hair. So Buds and Berries is a fairly new brand in the market. मुझे इनके products अच्छे लगे. They are of good quality, very affordable. This is also a toxin free, dermatologically tested and IRFA certified brand. So आप लोग को पता होगा कि मैंने अपने बालों में कलर कराया है. It's been almost 11 months and I've been only using and investing on shampoos that are meant for color treated, damaged and brittle hair. And this shampoo is meant for color treated hair. It contains pistachio nuts which helps to reduce hair breakage, argan oil that helps to recover the colored, damaged and chemically treated hair. It helps to deeply cleanse the scalp. It removes all the buildup and gunk without drying out my hair. Also, the shampoo is a 2-in-1 product. You can avoid using conditioner whenever you're using this shampoo because this is going to help to condition the length of your hair and also your scalp. So बालों को धोने के बाद I'm going to use my cotton t-shirt to wrap around my hair. कभी कभार मैं t-shirt यूज करती हूँ, कभी कभार मैं माइक्रोफाइबर टाल यूज करना पसंद करती हूँ. आज मैं t-shirt यूज कर रही हूँ. And then after washing my entire body, I'm back from the shower. Let's continue the hair care routine. तो बालों को t-shirt से निकालने के बाद I'm just going through my hair once again with the t-shirt to soak up excess water. उसके बाद I'm gonna apply serum on my hair. This is again by Buds and Berries. This is the pistachio and argan oil serum. मैंने कुछ 3 पंप लिया है हाथों में. Going to emulsify this, like spread it evenly all over my palm and going to apply this on my damp hair. So whenever I'm skipping conditioner, I always make sure कि मैं serum तो at least apply करूँ just to provide extra nourishment for the length of my hair because my lengths are like very frizzy in nature. You can use this on your dry or damp hair. This can also act as a heat protectant for your hair. Really like the formula of this hair serum. It's super lightweight, non-sticky. अच्छी बात ये लगती है मुझे सीरम की ना, it doesn't weigh down my hair. पूरे बाल सूख जाने के बाद ना ऐसे फ्लैट नजर नहीं आते हैं और नीचे नीचे से ऑयली नहीं नजर आते हैं. It provides extra shine to the hair which I really like and makes my hair very smooth to touch as well. So सीरम अच्छे से अप्लाई करने के बाद I'm going to blow dry my hair. As I told you, this serum is going to act as a heat protectant for my hair. मेरे blow dry में कोई टेम्परेचर सेटिंग नहीं है. It just have a medium and full blast heat setting. मैंने full blast में अपने बालों को blow dry किया है. I don't always blow dry my hair whenever I'm washing my hair, but अगर मैं बहुत ज़्यादा जल्दी में हूँ और मुझे बाहर कहीं जाना है, उस दिन बाल भी धोया है, तो I like to like blow dry my hairs and this is how I like to do this. So I like to blow dry in one direction for like 5 minutes and then I will switch the direction. उसके बाद मैं अपने बालों को flip करके एक बार और blow dry करना पसंद करती हूँ ताकि पीछे पीछे के बाल भी अच्छे से blow dry हो जाए. पूरे बालों को blow dry करने के बाद I just switch off the hot setting and मैं cool shot का यूज करते हुए अपने पूरे बालों को फिर से blow dry करती हूँ. It just helps to make sure कि मेरे बाल frizzy और puffy ना हो जाएं क्योंकि hot air जब आप यूज करते हो तो cuticles ऐसे खुल जाते हैं तो बाल frizzy हो जाते हैं. तो cool air यूज करने के बाद cuticles close हो जाते हैं तो आपके बाल ऐसे frizzy से नहीं लगते, स्पेशली नीचे वाले बाल. And this is the final result of my hair. आप लोग देख सकते हो मेरे बाल कितने ज्यादा अच्छे लग रहे हैं. There is volume on my scalp. Lengths are looking so healthy and smooth and shiny. I think जो hair style आप क्रिएट करते हो ना, काफ़ी कुछ हेयर के रूटीन पे डिपेंड करता है. तो इतना कुछ जो मैंने किया है ना, ये अपने हेयर स्टाइल को मेंटेन करने में हमें मदद करेगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई बी क्रिएटिंग अ मिडिल पार्टीशन एंड देन विदाउट यूजिंग एनी ब्रश और कोम आई बी क्रिएटिंग द हेयर स्टाइल विद द हेल्प ऑफ माई फिंगर्स. सो मेंटेनिंग द मिडिल पार्टीशन ऑफ माई हेयर, आई विल बी पुलिंग बैक ऑल ऑफ माई हेयर. आई एम कीपिंग माई हेयर वेरी स्लीक. उसके बाद आई वांट टू टाई माई हेयर यूजिंग अ ब्लैक रबर बैंड. आप लोग देख सकते हो कि मैंने 3 नॉट क्रिएट किया और 3 में ही मेरे बाल एकदम टाइट हो जाते हैं. यहाँ पे मैं टिप देना चाहूंगी, यूज हेयर बैंड और हेयर टाई जो कि बहुत अच्छी क्वालिटी का है. उसके बाद I'm going to frame my face. I love to frame my face. I feel like it just brings the entire look together. So सामने सामने जहाँ भी baby hair मुझे दिख रहे हैं ना, थोड़े थोड़े बाल ऐसे मैं निकालूंगी. I'll be styling it later on after completing my entire makeup look. So ear look के पास मुझे काफी baby hairs हैं तो I will be securing it with the help of a bobby pin and then थोड़ा सा serum अपने palm में लेके warming it up and applying that just for the length of my ponytail. ऐसे करने से flyaways नहीं निकलेंगे बालों से और बाल frizzy और poofy नहीं हो जाएंगे मेरे. And this is the entire hairstyle guys. अभी complete नहीं है. We are gonna do the makeup and then complete the entire hairstyle as well. So this is what my skin looks like without any makeup. I've already done my skincare routine. It is so important to do a skincare routine according to your skin type. आप लोग देख सकते हो कि मेरे acne marks और scars visible हैं and I won't be trying to hide it. Okay, I'm not going for a full coverage look, but the look is gonna be long lasting, pretty easy to carry as well. सबसे पहले I will be using prime water all over my face to prime my face and I'm gonna pat it into my skin. But मैं उसकी सूखने का पूरा wait नहीं करूँगी. I'm gonna be moving on to next step, that is applying cheek tint. So I apply
applied 3 dots on my cheekbones and I'm going to blend it with the help of my fingers from my cheeks towards my cheekbones. So आप लोग देख सकते हो कि क्योंकि मैंने ना वेट नहीं किया था प्राइम वाटर की सूखने का पूरा completely एंड उसके ऊपर ही चीक टिंट अप्लाई कर दिया था, इट इज प्रीटी ईजियर फॉर मी टू ब्लेंड दैट चीक टिंट दैट आई अप्लाइड ऑन माई फेस. ड्राई फेस पे ऐसे अप्लाई करने की कोशिश करते हो तो बहुत जल्दी चीक टिंट ऐसे ब्लेंड हो जाता है और पैचीनेस आ जाता है. सो दिस इज अ ट्रिक दैट आई लाइक टू डू, लाइक अप्लाइंग प्राइम वाटर उसके ऊपर चीक टिंट. तो मैंने नेक्स्ट साइड पे भी अप्लाई किया है, अपनी नोज पे भी अप्लाई किया है एंड ऑल्सो अप्लाइड दैट ऑन माई चिन. एंड इसके ऊपर हम अपना बेस अप्लाई करेंगे ना तो ऐसे निखर के आएगा, ऐसा लगेगा कि आपकी स्किन विद इन ग्लो कर रही है एंड यू विल सी दैट in a bit. So you guys know that I have pigmentation around my lips, so even if it's a everyday makeup look, I like to color correct around my lips ताकि you know foundation या concealer ऐश ना लगे बिल्कुल भी मेरे स्किन पे. So मैंने ऑरेंज कलर करेक्टर अपने लिप्स के कॉर्नर पे ज्यादा अप्लाई किया है क्योंकि वहाँ पे पिगमेंटेशन ज्यादा है और अपने फिंगर्स की मदद से प्रोडक्ट को अपने लिप्स के अराउंड अच्छे से ब्लेंड किया है और मैं वहाँ पे ना उसे सेट होने के लिए 1 मिनट तक रखूंगी. फॉर कंसीलर आई विल बी यूजिंग Wet n Wild Photo Focus Concealer in the shade medium deep tan. So I like to apply from the inner corner and जहाँ अंडर आई बैग्स दिख रहे हैं वहाँ पे आउटर कॉर्नर ऑफ माई आईज एंड देन अराउंड माई लिप्स इन द वी शेप दैट यू सॉ. उसके बाद जहाँ जहाँ मुझे रेडनेस एक्ने मार्क्स दिख रहा है उसके ऊपर मैं इसे डॉट डॉट करके अप्लाई कर दूंगी एंड देन आई विल रिपीट द सेम स्टेप ऑन द अदर साइड ऑफ माई फेस. सो आई लाइक टू यूज अ कंसीलर दैट मैचेस टू माई स्किन टोन. पहले जो कंसीलर है ये अंडर आई डार्कनेस को कैंसिल आउट करने में काफी अच्छे से मदद करता है. दिस इज नॉट गोइंग टू गिव एनी ब्राइटनेस टू द स्किन एनीवे. आई एम नॉट गोइंग फॉर दैट लुक. आई जस्ट वांट टू कवर अप माई अंडर आई डार्क सर्कल. मुझे इस कंसीलर का फॉर्मूला फॉर एवरीडे वेयर काफी ज्यादा अच्छा लगता है. आप लोगों ने देखा मैंने कंसीलर से वहीं यूज किया जहाँ जहाँ पे आई फेल्ट दैट आई नीडेड लिटिल बिट ऑफ एक्स्ट्रा कवरेज जस्ट टू इवन आउट माई स्किन अ बिट. उसके बाद आई जस्ट स्प्रेड 2 pumps ऑफ प्राइम वाटर ऑन माई फेस. क्योंकि हमने कम प्रोडक्ट यूज किया अपने फेस पे, आई विल बी गोइंग फॉर अ डैब एंड ड्रैग टेक्निक टू बफ दिस कंसीलर इनटू माई स्किन. मैं ज्यादा प्रोडक्ट को मूव नहीं करना चाहती हूँ. सो अराउंड माई लिप्स आई स्टार्टेड ब्लेंडिंग एंड देन मूव्ड ऑन टू माई चीक्स, माई जॉ लाइन एंड ऑल्सो माई नोज. आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने फोरहेड पे कंसीलर भी ज्यादा अप्लाई नहीं किया. वो मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मेरा फोरहेड जो है ना इट्स डार्कर देन रेस्ट ऑफ माई फेस. सो इफ आई वुड हैव अप्लाइड दिस कंसीलर ना वो ऐशी लगने लगता और फिर मुझे कॉन्टोर करना पड़ता एंड आई डोंट लाइक टू गो फॉर कॉन्टोरिंग व्हेन आई एम डूइंग लाइक एवरीडे मेकअप लुक. सो मैं चाहती हूँ कि नेचुरल कॉन्टोर जो है मेरा वो दिखे. सो आपने देखा कि मैं ब्रश को चेंज नहीं कर रही हूँ. आई जस्ट लाइक टू यूज वन ब्रश व्हेनेवर आई एम डूइंग लाइक एवरीडे मेकअप लुक. और मैं लास्ट में ब्लेंड कर रही हूँ कंसीलर अंडर माई आईज क्योंकि थोड़ा सा टाइम मिल गया उससे मेरे अंडर आईज पे सेटल होने पे एंड आई डोंट वांट मच मूवमेंट. वहीं पे कंसीलर को ब्लेंड करना शुरू कर दूंगी. सो इनर कॉर्नर, अंडर माई आईज, आउटर कॉर्नर ऑफ माई आईज अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ एंड ओवर माई आईलिड. आफ्टर ब्लेंडिंग माई कंसीलर दिस इज व्हाट माई बेस लुक्स लाइक. आई वाज गोइंग फॉर अ शेयर कवरेज और आप लोग देख सकते हो कि जो चीक टिंट था ना वो भी निखर के आ रहा है, विद इन ग्लो दे रहा है वो मुझे. आई एम गोना सेट माई एंटायर फेस यूजिंग अ कॉम्पैक्ट पाउडर विच इज ऑयल एब्जॉर्बिंग बिकॉज आई हैव ऑयली टी जोन एरिया. आई लाइक पाउडर एंड मैं 2 डिफरेंट शेड को मिक्स करने वाली हूँ. सो आई विल बी मिक्सिंग सैंड एंड ऑलिव. दिस 2 आर बाय नायका. इनका फॉर्मूला काफी ज्यादा अच्छा है और लॉन्ग वेयर कर देता है आपकी ये मेकअप को. सो सेटिंग अंडर माई आईज फर्स्ट एंड देन माई चीक्स, माई नोज, अराउंड माई नोज जहाँ जहाँ मेरा स्किन बहुत जल्दी फ्रिक्वेंटली ऑयली हो जाता है वहाँ पे. और सेट करने के बाद आप लोग देख सकते हो कि लेफ्ट साइड लुक्स ग्लोई एंड राइट साइड इज ऑल मैट. आई विल बी सेटिंग द लेफ्ट साइड ऑफ माई फेस ऑफ कैमरा. मूविंग ऑन टू आईज नाउ. आई विल बी यूजिंग ब्लैक काजल एंड टाइट लाइनिंग माई अपर वाटर लाइन और इनर कॉर्नर को मैं टाइट लाइन कर रही हूँ हल्का सा. आप लोग देख सकते हो इट जस्ट एड्स अ लिटिल oomph टू द लुक जो आपको बाद में पता चलेगा जब मैं मस्कारा अप्लाई करूंगी. एक ऐसा काजल यूज करो आप लोग भी कि जो लॉन्ग लास्टिंग है, जिसका फॉर्मूला अच्छा है. इस काजल का अच्छा है काफी. नाउ आई एम गोना यूज अ आईलैश कलर टू कर्ल माय आईलैशेस एंड फॉर मस्कारा आई विल बी यूजिंग अ वाटरप्रूफ मस्कारा. सो पहले मैंने वॉन्ड में से एक्सेस मस्कारा रिमूव किया है एंड देन आई विल स्टार्ट अप्लाइंग द मस्कारा ऑन माय अपर लैशेस. इस मस्कारे का फॉर्मूला काफी ज्यादा अच्छा है. इसको निकालने में भी दिक्कत नहीं होती है. जब आप इस मस्कारा को लोअर लैशेस पे अप्लाई करते हो ना, इट डजंट ट्रांसफर ऑन योर स्किन क्योंकि कभी कभार कुछ मस्कारा इन द एंड ऑफ द डे जस्ट ट्रांसफर इनटू योर स्किन स्पेशली ऑन योर अंडर आईज. बट दिस मस्कारा फॉर्मूला इज लाइक प्रीटी ग्रेट. अगर आपको भी ये दिक्कत होती ना तो ये वाला मस्कारा ट्राई करके देखना. एनीवे आफ्टर अप्लाइंग द मस्कारा ऑन माय अपर एंड लोअर लैशेस आई विल बी डूइंग माय आईब्रोज नाउ. सो नाउअडेज आई लाइक टू डू माय आईज फर्स्ट एंड देन मूविंग ऑन टू आईब्रोज. सो फर्स्ट आई विल बी कोमिंग एंड शेपिंग माय आईब्रोज ताकि मुझे पता चले कि कहाँ कहाँ पे मुझे स्पार्श एरिया फिल करना है. एंड देन विद लिटिल स्ट्रोक आई विल स्टार्ट फिलिंग अप द स्पार्श एरिया. सो ज्यादा प्रोडक्ट में फोकस ना सिर्फ टिप पे करती हूँ तो सामने मैंने सिर्फ हल्का हल्का स्ट्रोक दिया है और टिप पे काफी अच्छे से मैंने स्ट्रोक देके अपने आईब्रोज को फिल किया है. अगर आपको चेक करना है कि कोई स्पार्श एरिया छूट तो नहीं गया या ओवरफिल नहीं किया आपने अपने आईब्रोज को, तो जस्ट लुक डाउन एंड चेक योर आईब्रोज. आपको एक क्लीन लाइन दिखनी चाहिए जो कि यहाँ पे दिख रही है. एंड नाउ आई एम गोना सेट माय आईब्रोज इन अपवर्ड डायरेक्शन. बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है ये, अदरवाइज मेरे आईब्रोज
ड्यू टू ग्रेविटी नीचे झुक जाते हैं और वो बिल्कुल अच्छा लुक नहीं लगता है. एंड देन आई एम गोना गो इन एन एंगल टू स्ट्रोक अप माई आईब्रोज इन अपवर्ड डायरेक्शन. बीच बीच में थोड़ा ज़्यादा फोकस करना पड़ता है क्योंकि वहाँ पे बुशी है मेरे आईब्रोज, तो वहाँ ज़्यादा प्रोडक्ट लगता है मुझे. सो आफ्टर सेटिंग माई आईब्रोज आई बी अप्लाइंग पाउडर ब्लश ऑन माई चीक्स. ये जो पाउडर ब्लश का कलर है ना, इट्स लाइक अ बेबी बार्बी पिंक कलर. सो ये ऐसे समर्स पे काफ़ी अच्छा लगता है. इट जस्ट ब्राइटन्स योर एंटायर लुक. एंड आई ऑलवेज लाइक टू लाइक लेयर माई ब्लश फॉर एवरीडे लुक्स. जब पाउडर ब्लश हट जाएगा तो विद इन ग्लो तो टिंट से आएगा ही जो हम लोग ने अप्लाई किया हुआ है. फॉर लिप्स आई बी गोइंग फॉर अ ग्लॉसी पिंकी न्यूड लिप्स. सबसे पहले आई बी आउटलाइनिंग माई लिप्स यूजिंग लिप लाइनर. दिस इज इन द शेड चेस्टनट. दिस इज बाय वेट एंड वाइल्ड फ्रॉम देयर कलर आइकॉन कलेक्शन. इसी लिप कलर की मदद से अपने लिप्स को फिल भी किया है, स्पेशली ऑन द आउटर कॉर्नर्स. एंड देन मूविंग ऑन टू अ पिंक लिक्विड लिपस्टिक दैट आई बी अप्लाइंग ऑन द सेंटर. एंड विद द हेल्प ऑफ माई फिंगर आई विल ब्लेंड द लिप लाइनर इनटू माई लिपस्टिक ताकि एक ऑम्ब्रे इफेक्ट मुझे मिले. उसके बाद जस्ट ऑन द सेंटर थोड़ा सा और लिपस्टिक ऐड किया ताकि सेंटर पे डार्क लगे लिप्स और पिंक लगे. एंड देन आई विल बी अप्लाइंग माई टॉपर दैट इज माई क्लियर लिप ग्लॉस. दिस इज बाय कप्स एंड लैशेस. सो कप्स एंड लैशेस के जो बॉन्ड है ना, इट्स वेरी स्टिफ एंड आई लाइक अ सॉफ्ट बॉन्ड टू अप्लाई लिप ग्लॉस. तो जो लिप ग्लॉस का बॉटल खत्म हो चुका है उसका मैंने बॉन्ड लिया है. एंड देन आई स्टार्टेड अप्लाइंग द लिप ग्लॉस ऑन माई लोअर लिप्स फर्स्ट एंड देन वेरी केयरफुली ऑन माई अपर लिप्स. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्टेप दैट इज टू सेट माई फेस. आई बी यूजिंग दैट प्रेप एंड प्राइम वाटर ऑल ओवर माई फेस. जिस गोना मेक श्योर कि जो पाउडर प्रोडक्ट मैंने यूज किया है दैट इज गोना ब्लेंड इन विद ईच अदर एंड गोना ब्लेंड इन सिंक विद माई स्किन. और आप लोग देख सकते हो कि हल्की हल्की हाथों से ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से आई एम प्रेसिंग दिस सेटिंग स्प्रे इनटू माई स्किन फर्दर मोर. एंड थोड़ा से आंखों के ऊपर क्रीजिंग आ गया था तो आई जस्ट रिमूव दैट विद द हेल्प ऑफ माई फिंगर्स. एंड आई एम गोना वेयर माई ज्वेलरी दैट इज माई इयररिंग्स एंड माई रिंग्स. आई फील लाइक इयररिंग्स ऑल्सो एड सो मच टू द एंटायर लुक. उसके बाद जो मैंने फ्रेम करने के लिए फेस को बाल निकाले थे ना सामने से, उसे मैं स्ट्रेट करूंगी यूजिंग अ स्ट्रेटनर. एंड देन आई एम गोना सेट दैट विद द हेल्प ऑफ अ हेयर स्प्रे. अगर मैं हेयर स्प्रे अप्लाई नहीं करती हूँ, ट्रस्ट मी, कोई फायदा नहीं होता है, बाल वापस से वेवी हो जाते हैं बिकॉज आई हैव वेवी हेयर. एंड विद दैट आई कंप्लीटेड द एंटायर मेकअप लुक. दिस लुक इज लॉन्ग लास्टिंग, वेरेबल, ईजी टू क्रिएट. मैं 7 से 10 मिनट में ये वाला लुक क्रिएट कर सकती हूँ. द फोकस ऑफ दिस काइंड ऑफ लुक्स और एवरीडे मेकअप लुक इज टू एनहांस द बेस्ट फीचर्स. फॉर मी इट्स माई आईब्रोज, माई आईज, माई चीक्स एंड माई लिप्स एंड दैट इज वॉट आई डिड. और एक और चीज, अगर मुझे पता होता कि मुझे मास्क 1-2 घंटे के लिए पहनना पड़ेगा, ये कंपलसरी है, तो आई वोंट बी वेयरिंग लिप ग्लॉस. आई बी जस्ट वेयरिंग दैट लिप कॉम्बो दैट आई शोड यू, क्योंकि फिर ना मुझे बहुत ज्यादा इरिटेशन होती है. Alright, so this was the video for today. I really hope you enjoyed watching today's video and found today's video informative, helpful and learned some new makeup and also hair care and hairstyle tips from today's video. Honestly speaking, products मैंने वही यूज किया है जो मैं पिछले 1 साल से कुछ यूज कर रही हूँ. थोड़ा बहुत चेंजेस होगा प्रोडक्ट्स में, बट मैंने कुछ नए मेकअप टिप्स आपको बताए हैं. ट्राई करके जरूर उन्हें देखना. ट्रस्ट मी, these tips are gonna change your makeup game for sure. Trust me guys when I say this, मुझे खुले बाल काफी ज्यादा पसंद है अपने, बट वो मैनेजेबल बिल्कुल ही नहीं है मेरे लिए. स्पेशली समर, ह्यूमिड वेदर, इवन बारिश के टाइम पे वो बहुत ज्यादा फ्रिजी और पूफी हो जाते हैं एंड वो बिल्कुल भी अच्छे ही नहीं दिखते हैं. सो टू कंप्लीट द एंटायर लुक, आई थिंक हेयर स्टाइल ऑल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. दिस इज लाइक माई गो टू हेयर स्टाइल. जो भी प्रोडक्ट्स मैंने यूज किए उन सबके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी. एंड डू चेक आउट बर्ड्स एंड बेरीज पिस्ताशियो एंड आर्गन ऑयल हेयर केयर रेंज. एंड आई एम गोना सी यू गाइस प्रीटी सून विद ब्रांड न्यू कंटेंट एंड थोड़ा सा हटकी कंटेंट ऑल्सो ऑन दिस चैनल. और क्या बोलती हूँ मैं, हाँ, लाइक, कॉमेंट, सब्सक्राइब टू माई वीडियो. बाय एवरीवन, टेक केयर.